already most of the yeah, 100% we have covered the module 1. So last day we have started tabular method, this queen matrix method. Today we take two more examples if time permits. Then in the very beginning next class we start sequential circuit. Okay, और मैं देख लूंगा वहाँ पे कुछ बाकी है तो we'll complete that one. नहीं तो we start sequential circuit. That's portion is so much important. Okay, sequential circuit. और जो मॉड्यूल 2 था उसी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर में, तो दैट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो लास्ट डे वी हैड स्टार्टेड क्वीन मैक्लोस्की मेथड. I have discussed that one. Today we take one more example. Okay, to explain with the don't care conditions. With the don't care conditions, we have solved it. I have solved it, and I am showing you the process. Okay, and you, as I have practiced, you have to practice also. Otherwise, that this process is too much difficult to complete. Okay, कहीं ना कहीं जगह में ये भूल हो जाएगा. So that's why I am telling you, it's a बड़ा process है. You have to practice it at your home. Okay, then only you will get the confidence. तो पहले जो है ये प्रोसेस क्या है, हमारा एक इक्वेशन मिलेगा. ध्यान से देखिए वो इक्वेशन. Then at the beginning, at the very first, you have to find out how many number of variable are there. जैसे मान लो यहाँ पे जो we have taken the example here, variables are 4. Okay, A B C D or W X Y Z, and within the bracket 1 2 3 5 9 12 14 and 15 है. उसके साथ समेशन D है, that is don't care 4 8 11. जैसे तुम लोग 4 वेरिएबल तक डोंट केयर यूज कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे भी डोंट केयर इस्तेमाल होगा. तो पहले जो मैंने बोला था, पहले तुमको मीन टर्म्स लिखना है जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है. ठीक है, क्योंकि 4 वेरिएबल होगा तो टोटल 16 मीन टर्म्स होगा. लेकिन जो मीन टर्म्स तुम्हारा है यहाँ पे प्रॉब्लम में, दैट यू हैव टू राइट वन बाय वन. ओके, सो दैट यू हैव टू राइट वन बाय वन. माय डियर स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू, प्लीज लिसन केयरफुली. सो जो देखो फर्स्ट जो स्टेप है वो सिंपल सा है. वहाँ पे तुम क्या करोगे, जो मीन टर्म्स है वो पर सीक्वेंशियली वो लिखोगे. सीक्वेंशियली लिखना है, नॉट हवाजाती. Then correspondingly binary representation. Then correspondingly binary representation. Because you know that from 0000 to 111, that will be the combination. तो पहला क्या है ये देखो M1 है तो 0001 होगा. M2, M3, M5, M9, M12, M14, M14 तक है. देखो यहाँ पे M14 तक, सॉरी 15 तक है. सो ये 15 है. ये 15 का मतलब क्या है, ऑल आर वन. 1 1 1 1. नाउ यहाँ पे जो है 4 8 and 11, ये तुम्हारा डोंट केयर है, इसलिए मैंने लिखो डोंट केयर M4, डोंट केयर M8, डोंट केयर M11. तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लिख चुके हैं ना. मैंने क्या बोला तुमको, मैंने क्या बोला सेकंड स्टेप क्या होगा, कोई बोल सकते हैं क्या? सेकंड स्टेप क्या होगा? कोई बोल सकता है क्या होगा? सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप में जो होगा, मैं बोल चुके हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ. रीऑर्डर, reorder it all the mean terms. It means mean terms. Reorder all the mean terms according to the number of ones. Please listen carefully. Reorder or rearrange all the mean terms according to number of ones. According to the number of ones. Okay. तो M1 कितने वन है? How many number? How many ones are there? One, single one है. M2 single one, M4 single one, M8 single one. So all the numbers M1, M2, M4, M8, all the mean terms here 1, 2, 4 and 5 having single one. देखो यहाँ पे जो नंबर मिला है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिला है, यहाँ पे सिंगल वन है, इसलिए दे आर इन सेम ग्रुप. दैट्स व्हाई दे आर इन सेम ग्रुप.
ना सेकंड ग्रुप क्या होगा, जिस जिस मिन टर्म्स में 2 1 है, जिस जिस मिन टर्म में 2 1 है वो यहाँ पे बैठेगा। सो M3 हाउ मेनी वंस आर देयर, 2, M5 2, M9 2, M12 2। सो ये जो ग्रुप है, सेकंड ग्रुप जो है M3 M5 M9 M10, all the mean terms are having two number of ones, two number of ones. That's why they are keeping in a same group. Now move to the third group. Move to the third group. That is M4 and M14. M4 and M14. 4 2 3 1 है, सॉरी M क्या है ये बोलो तो 11 है, सॉरी M11। तो M11 है, M4 तो ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे बिकॉज दे आर हैविंग सिंगल वन। सो M14 है और M11 है। सो 11 एंड M14 वो 3 3 करके 1 है, इसलिए दे आर इन द सेम ग्रुप, दे आर इन ए कॉमन ग्रुप। नाउ देखो M15 है, यहाँ पे कितने 1 है, 4 1 से, सो दैट इज इन द सेपरेट ग्रुप। M15 इन ए सेपरेट ग्रुप बिकॉज डोंट नो वन हैविंग द number of 4 4, so only 15 having number of 4 are 4, so that's why it is in a separate group. So that is the step 2. That's why I am telling you the group step 2 would be you have to rearrange all the mean terms in accordance with the number of ones. So we have done it, we got it now बोलो स्टेप 1 स्टेप 2 में किसी को भी डाउट है तो बोलो। Now we move to the step 3. Now we move to the step 3. What is the process here? Now you have to check each and every number with the nearest neighbor group of every number. जैसे मान लो M1 के साथ M3, M1 के साथ M5, M1 के साथ M9, M1 के साथ M12 कंपेयर करना है, एंड M1 के साथ M3, M5, M9 और M12 जो भी है वहाँ पे if 1 बिट चेंज होगा, 1 बिट चेंज होगा तो वो ग्रुप होगा। नेक्स्ट फेज में वो लोग जाएगा। ये जो थर्ड स्टेप में स्टेप 3 में कौन कौन ग्रुप जाएगा वो डिपेंड करेगा जिस जिस नंबर में सिंगल बिट चेंज होगा, ओनली सिंगल बिट चेंज होगा। क्योंकि तुम लोग जानते हो ना कि मैं तो यही तरीका है कि कॉन्जिक्यूटिव टू नंबर में सिंगल बिट चेंज होना चाहिए। इसलिए मैंने आई हैड ए डिस्कशन विद यू, मैंने बोला था 0 0 0 1 फिर 1 1 देन 1 0 होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 नहीं होगा है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टू नंबर में सिंगल बिट चेंज होना जरूरी है। इसलिए तुम जो कंपेयर करोगे M1 के साथ M3, देन यू हैव टू if both the numbers M1 and M3 में सिंगल बिट का चेंज होगा, okay, other 3 number remain constant, then only that group will move to the second step or second column, ओके, और द नेक्स्ट कॉलम। ओके, तो देखो यहाँ पे M1 में क्या है, ये तो मैंने एक दो बोलूंगा, मैं करके रखा हूँ, यहाँ पे करके रखा हूँ, तो एक दो मैं बोलूंगा, देन विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सभी को मैं दिखाऊंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है बाबू, M1 में क्या है 0 0 0 1 है, M3 में क्या है 0 0 1 1 है। तो देखो 0 0 नो चेंज, इसका जो 0 है 0 नो चेंज है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, सो सिंगल बिट चेंज हो गया, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। सो M1 M3 सेकेंड ग्रुप में नेक्स्ट ग्रुप पे जाएगा, नेक्स्ट कॉलम में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बिट चेंज है, वो है 0 1। नाउ जो बिट चेंज हुआ है उसको डैश लिखेंगे, उसको डैश लिखेंगे हम लोग, 0 1 है तो ये नेक्स्ट रूम में जाएगा, तो क्या होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 0 0 डैश 1 0 0 डैश 1 0 0 डैश 1। ओके, सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसके किसके साथ ग्रुप हुआ है, 1 के साथ 3, सो M1 मीन टर्म्स
makes group with M3, that's why I written here min terms 1 3, 1 के साथ 3 ग्रुप हो गया, सो 1 का ग्रुप हो गया इसलिए टिक मारो, 3 भी हो गया इसके लिए टिक मारो, टिक हो गया। नाउ विल मूव टू कंपेयर अदर ग्रुप, M1 के साथ M5, देखो M1 के साथ M5 भी होगा, ठीक है, M1 के साथ M5 भी होगा इसलिए M1 5 चला गया, 1 एंड 5 यहाँ पे ग्रुप हो गया। ना देखो कौन चेंज हो रहा है, देखो यहाँ चेंज रहा है 0, ये 1, ये 0 है, सेकंड बिट 0 है, इधर 1 है, अब ऑल बाकी जो है सब कांस्टेंट है, इसलिए M1 के साथ M5 ग्रुप हुआ है यहाँ पे, और सेकंड बिट में चेंज हुआ है इसलिए 0-01 लिख दिया। सेम वे 1 के साथ 9 भी हो गया, करेक्ट, 1 9 भी हो गया एंड डैश 001 हो गया। नाउ 1 के साथ 12 देखो, 1 के साथ 12 है क्या, नहीं है, देखो 1 के 9 खत्म होगा, 1 के पास 12 नहीं है, वाई नहीं है, देखो मल्टीपल चेंज होगा, देखो ना M12 माने क्या है 1 1 0 0, यहाँ पे क्या है 0 0 1, फर्स्ट चेंज 0 1, सो डबल चेंज हो गया। तो ये नंबर 1 के साथ 12, 1 मिलता के साथ M1 के साथ M12 ग्रुप नहीं होगा, सो दैट ग्रुप विल नेवर मूव इनटू द नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में वो नहीं जाएगा, इसलिए देखो 1 12 इधर नहीं है। नाउ 1 के साथ ये 4 कंपेयर हो गया, नाउ M2 के साथ ये 4 कंपेयर होना चाहिए, तो M2 के साथ 3, M2 के साथ M5, M2 के साथ M9 एंड M12 कंपेयर होगा, तो देखो 2 के साथ 3, ओनली 2 के साथ 3, 2 with 3 कंपेयर हुआ, बाकी किसी को भी साथ ग्रुप नहीं है, क्योंकि बाकी जो सारे हैं 2 के साथ 5 9 एंड 12 वहां पे मोर देन 1 बीट चेंज हो रहा है, मोर देन 1 बीट चेंज होगा तो क्या होगा, वो नेक्स्ट कॉलम में, वो ग्रुप नेक्स्ट कॉलम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं बना पा रहे हैं, 2 के साथ ओनली 3 हुआ, देखो 2 के साथ 3 हुआ, और 2 के साथ 5 नहीं है, 2 के साथ 9 भी नहीं है, 2 के पास 12 भी नहीं है, तुम टेस्ट करके देखो, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ, 2 के साथ 12 देखो, 2 क्या है 0 है, यहाँ पे 1 है, सिंगल फर्स्ट चेंज हो गया, 0 है यहाँ पे 1 है, तो देखो डबल चेंज हो गया, इसलिए 2 के साथ 12 नहीं हुआ है। नाउ 4 के साथ 3, M4 के साथ M5, M4 के साथ M4 विथ M9, M4 विथ M12 कंपेयर करनी है। नाउ देखो 4 एंड 5 में कंपेयर हो गया क्योंकि सिंगल बिट चेंज है, ठीक है, 4 और 12 में भी हो गया, लेकिन 4 और 5, सॉरी 4 और 3 में नहीं हुआ, देखो 4 और 3 नहीं है, 4 और 3 में नहीं है, देखो 4 क्या है 0 है इधर, 3 में भी 0 0 है, कोई नहीं प्रॉब्लम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो फर्स्ट चेंज हो गया, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, नहीं चेंज है, पर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो देखो M4 और M3 में डबल चेंज हो गया, इसलिए 3, हाँ 4 3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 4 5 है, 4 12 है, ठीक है। नाउ 8 के साथ कंपेयर होगा 3, 8 3 भी नहीं है, डबल चेंज हो गया, 8 के साथ M5 भी, M8 विथ M9 एंड M8 विथ M12 यू टू कंपेयर, इफ सिंगल बिट चेंज होगा, दोनों में से सिंगल बिट चेंज होगा, देन ओनली दैट ग्रुप विल मूव टू द नेक्स्ट कॉलम, अदरवाइज यू हैव टू कीप इट इन द सेम प्लेस। और जो जो उधर चला गया उसको मैं टिक दे दिया, देखो 3 3 है चला गया, ये ठीक हो गया, 5 है इधर देखो 5 है, 4 5 5 है, 5 ठीक हो गया। now देखो 9 8 9 चला गया, 8 8 9 ग्रुप हो गए, 9 चला गया, ये भी ठीक हो गया, देन 8 के साथ 12 भी चला गया, विथ 8 के साथ 12 भी चला गया इधर, इसलिए 12 भी ठीक हो गया। देखो M8 और M12 में कंपेयर करो, ये 1 है, ये 1 है, नो चेंज, ये 0 है, ये ये 1 है, तो सिंगल चेंज हो गया, सो 1 चेंज हो गया, 0 है, ठीक है, ये 0 है, सो नो चेंज, ये 0 है, ये 0 है, सो नो चेंज, तो सिंगल चेंज ही हुआ, इसलिए तुम्हारा ग्रुप 8 के साथ, हाँ 12 हो गया, 8 के साथ 12 ग्रुप हो गया, ठीक है, इसलिए ये भी ठीक हो गया। नाउ यू हैव टू कंपेयर M3 के साथ M11,
एंड M3 के साथ M14। सेम वही M5 के साथ ये दो, M9 के साथ ये दो, M12 के साथ ये दो कंपेयर करनी है। जो जो ग्रुप में सिंगल बिट चेंज होगा वो नेक्स्ट कॉलम में जाएगा। इन दैट वे वी हैव मेड द ग्रुप विथ 3, 11, 9, 11, 12 एंड 14। सो इसे ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, 3 चला गया, 5 चला गया, 9 चला गया, 12 चला गया इधर, मैंने पहले बोल दिया, इसलिए ऑल दीज आर टिक्ड। नाउ एम 11 भी चला गया, यहाँ पे 11 है देखो, इसलिए टिक हो गया, ठीक है। ये 14 भी चला गया, ये 14 भी टिक करना चाहिए, ठीक है। यहाँ आई मिस्ड दैट वन, ठीक है। तो 2 भी चला गया, तो इसलिए 2 भी टिक होगा, ठीक है। जो जो चला गया सबको टिक करनी है, करते करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे टिक 2 भी टिक होगा, ठीक है। 8 भी टिक होगा, क्योंकि ये नंबर देखो ना, मिड टर्म्स चला गया नेक्स्ट कॉलम में। जो नंबर नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा उसी को टिक मार दो। तो नाउ लास्ट में देखो, 11 के साथ 15 होगा कि नहीं देखना है, 14 के साथ 15 भी देखना है। ये घर में तुम्हारा जो वीडियो बन रहा है, ये तुम बार बार से देखो, मैं जो क्लास ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी कोशिश करो समझने का। तो 11 के साथ 15 ग्रुप करो, देखो 11 में क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है तो नो चेंज, 0 1 तो सिंगल चेंज हो गया, 1 1 नो चेंज, 1 1 नो चेंज। सो 11 के साथ 15 ग्रुप होगा, तो 11 के साथ 15 हो गया, तो ये क्या हुआ, 1 डैश 1 1 1 डैश 1 1। ना देखो 14 से 15 होगा कि नहीं, 14 क्या है, 1 है, 1, सो नो चेंज, 1 1 नो चेंज, यहाँ 1 यहाँ 1 नो चेंज, 0 1 तो सिंगल चेंज है। सो 14 15 के साथ भी ग्रुप हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलम। सो 14 15, तो ये क्या होगा, 1 1 1 यह चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, एलएस में भी चेंज हो रहा है, इसलिए 1 1 1 डैश होगा, 1 डैश होगा। यहाँ पे all the numbers, all the meters moving to the next column। ना यहाँ पे दिखना है, ठीक है। किसी कौन कौन साथ में, फोर्थ में भी, स्टेप 4 में भी दिखना है, जो ये यहाँ पे जो है इसके साथ यहाँ पे कंपेयर करना है, इसकी जो है यहाँ पे कंपेयर करना है। लेकिन यहाँ पे ये इतने सारे कंपेयर करने का कोई जरूरत नहीं है, वो वन प्रोसेस है। देखो कैसे तुम कंपेयर करोगे, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर में जिसका जिसका डैश है, ये इस ग्रुप में थर्ड में किस कहाँ, यहाँ देखो, देखो इतने सारे नंबर है फर्स्ट ग्रुप में, इतने सारे नंबर के साथ ये सेकंड में कंपेयर करना है, तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये तरीका है, वन प्रोसेस है, सबको सबके साथ कंपेयर करने का कोई जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू कंपेयर ऑल द नंबर्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप विद द सेकंड ग्रुप इन स्टेप 3। सो व्हाट इज द प्रोसीड्योर, ये पहले जो नंबर है देखो, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, देखो यहाँ पे कौन कहाँ डैश है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में डैश है, तो यहाँ देखो ये थर्ड पोजीशन में डैश है नहीं, यहाँ पे डैश है, डैश है, तो ये तुमको पकड़ लो, 9 और 11 के साथ 1 3 का कंपेयर होना चाहिए, ठीक है। 1 3 के साथ 3 11 का कंपेयर होना चाहिए, देखो यहाँ पे हो गया, 1 3 के साथ 9 11 कंपेयर हो गया। तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, देखो कहाँ गया, सॉरी ये वाला, यहाँ पे 0 है, 9 11 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 1 सिंगल चेंज हो गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, नो चेंज, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, नो चेंज, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नो चेंज। तो 0 1 पहले वाला जो नंबर है 1, यहाँ पे 0, ये चेंज हो रहा है। तो ये नेक्स्ट कॉलम में जब जाएगा, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो क्या होगा, ये 1 0 हो रहा है, बाय 1 बिट चेंज हो रहा है, तो मैंने बोला जो चेंज होगा वो डैश होगा, इसलिए 1 3 के साथ जब 1 3 के साथ जब 9 11 कंपेयर होगा, तो ये वाला 1 3 9 11 हो जाएगा, एंड ये नंबर डैश 0 डैश 1 हो जाएगा, डैश 0 डैश 1 हो जाएगा। ना देखो यहाँ पे भी एक डैश है, ठीक है, ये थर्ड पोजीशन है, इधर भी थर्ड पोजीशन है, ठीक है क्या है। सो 1 3 है ये कहा गया बाबू,
14 14 15 12 14 देखो 12 14 12 था ये 1 1 0 0 14 क्या था 1 1 1 1 0 1 1 ओके। तो ये क्या किया 1 9 के साथ ओ 3 1 के साथ ये हुआ 1 3 के साथ 9 11 हो गया 1 3 के साथ कहा गया 9 11 हो गया ओके। तो 1 3 के साथ 12 14 देखो यहाँ पे देखो यहाँ है इधर भी है तो कंपेयर करो जीरो है ये ना देखो ये 1 है ठीक है तो सिंगल चेंज हो गया इधर जीरो है इधर 1 है देखो तो मल्टीपल चेंज हो गया 2 बिट चेंज हो गया इसलिए 1 3 के साथ 12 14 नहीं ग्रुप बना पाया। देखो 1 3 0 0 डैश 1 है यहाँ पे देखो 1 1 डैश 0 है तो डैश थर्ड पोजीशन में है डैश तो मैंने क्या बोला जिसका लाइक टर्म्स डैश है उसी से कंपेयर करना है तो वो 9 11 के साथ ग्रुप बना दिया लेकिन 12 14 के साथ ग्रुप नहीं बना पाए क्यों नहीं ग्रुप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो 12 12 के 14 के साथ 1 3 में डबल चेंज हो रहा है 0 1 हो गया इधर भी 0 1 हो गया सो मल्टीपल चेंजेस देयर सो 12 13 दैट मीन्स 1 3 एंड 12 14 ग्रुप नहीं होगा इसलिए ग्रुप नहीं है। सिमिलरली देखो 1 9 के साथ 3 1 सॉरी 1 9 के साथ 3 11 ग्रुप हो रहा है 1 9 इधर है देखो यहाँ पे पहले डैश है ठीक है और 3 11 भी देखो पहले डैश है इसलिए 3 11 के साथ 1 9 कंपेयर होगा कंपेयर के बाद दिखना है वो सिंगल बिट चेंज होगा तो नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा तो ये सिंगल बिट चेंज हो रहा है इसलिए 1 9 3 11 नेक्स्ट ग्रुप में जा रहा है। इसके बावजूद यहाँ पे कुछ भी ग्रुप नहीं है जो सिंगल बिट चेंज हो रहा है इसलिए ये दोनों नेक्स्ट ग्रुप में है। स्टेप 4 में ये दो ग्रुप ही है बट यहाँ पे देखो और जो यहाँ पे और जो ग्रुप है नहीं जाएगा इधर इधर नहीं जाएगा। तो बोलो स्टेप 3 से स्टेप 3 बनाने के लिए तुम्हारा कोई डाउट है तो बोलो। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ उसके बाद तुम बोलो। ये तुम देखो ये जो ग्रुप है 1 3 तुमको देखना है डैश कहाँ है वो डैश नेक्स्ट ग्रुप में जो सेम पोजीशन में होगा उसी नंबर के साथ तुम कंपेयर करोगे। सब नंबर के साथ कंपेयर करने का कोई जरूरत नहीं है ठीक है। इन दैट वे you have to compare and we are getting 1 3 9 11 1 9 3 11 एंड देखो यहाँ पे डैश 0 डैश 1 डैश 0 डैश 1 तो बोथ आर सेम है। तो मैंने तुमको बोला a प्लस ए होगा तो a प्लस ए होगा तो a b प्लस बी होगा तो b इसलिए दोनों टर्म है सेम इसलिए हम लोग वन टर्म को लेना है इसलिए ये टर्म को मैं क्रॉस दे दिया ये कंसिडरेशन में नहीं होगा। तो नेक्स्ट ग्रुप में भी और नहीं मिलेगा ये लास्ट है स्टेप 4 फाइनल है। तो इन दैट वे यू हैव टू मेक द ग्रुप। तो कौन कौन ग्रुप बना 1 3 नेक्स्ट ग्रुप में चला गया इसलिए टिक हो गया 1 9 नेक्स्ट ग्रुप में चला गया तो इसलिए टिक हो गया ठीक है 3 11 नेक्स्ट ग्रुप में चला गया इसलिए टिक हो गया 9 11 भी नेक्स्ट ग्रुप में चला गया इसलिए टिक हो गया 1 2 3 4 ये 4 बाद जो जो मिन टर्म्स है वो नेक्स्ट ग्रुप में नहीं जाएगा इसलिए वो अनटिक्ड है ठीक है। तो यहाँ पे जो जो अनटिक्ड है वो तुम क्या करोगे वो अल्फाबेटिकली नेम देना पड़ता है। तो ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है ई एफ जी एच आई एंड जे in that way you have to make the number okay you have to add alphabet starting from a तो in that way a b c d e f g h i and j दे दिया। अब तक बोलो किसी को भी डाउट है तो बोलो नहीं तो हम प्राइम इम्प्लीमेंट पे चले जाओगे नेक्स्ट टेबल में चले जाएंगे। ये घर में तुमको खुद से बहुत प्रैक्टिस करनी है। सर बोलो
फिर यहाँ पे ABCD का मार्किंग क्यों दे रहे हैं सर? एबीसीडी की मार्किंग दे रहे हैं क्योंकि दीज आर बेसिकली ग्रुप नहीं बना पाया है। ओके, इसलिए कौन कौन ग्रुप नेक्स्ट कॉलम में नहीं गया है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दोज आर नॉट मूविंग टू द next group, next column, that those numbers, those mean terms basically, or those groups should be given a particular name. Okay, so those are should be A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Okay, in arranging in a particular fashion. Okay. क्लियर है सर, हाँ, थैंक जो जो टिक नहीं हुआ है, जो जो तुम्हारा ये ग्रुप नेक्स्ट कॉलम में नहीं गया है, उसी से तुमको नंबरिंग देना है। इसलिए मैंने बोला तुम नहीं टिक दोगे तो यहाँ पे भूल हो जाएगा। तो जो जो नंबर नेक्स्ट कॉलम में जाएगा उसको तुम टिक अवश्य देना, नहीं तो भूल हो जाएगा। तो नाउ देखो मैंने ग्रुप बनाया है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइम चार्ट। ओके, सो कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट चार्ट। सो यहाँ पे देखो प्राइम इम्प्लीकेंट्स मैंने लिख दिया 1, 5, 2, 3। देखो ये देखो ए का मतलब क्या है 1, 5, ये प्राइम इम्प्लीकेंट है। बी 2, 3, सी 4, 5, डी 4, 12, ई 8, 9, एफ 8, 12, जी 12, 14, H 11, 15, I 14, 15, J 1, 3, 9, 11. So in that way we have written here all the prime implications 1, 5, 2, 3, 4, 5, okay 8, 9, 12, लास्ट में देखो 1, 3, 9, 11। तो उसका साथ हम लोग ये भी लिख दिया, वो प्रोडक्ट टर्म भी लिख दिया। कैसे प्रोडक्ट टर्म लिख दिया, ये जो करेस्पॉन्डिंग जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो भी तुमको लिखना पड़ता है। तो 1, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो यहाँ पे 1, 5, देखो 1, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 0-01। तो ये भी तुमको लिखना है, ये मतलब ये एंड ये मीन टर्म्स एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये तुमको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है, मीन टर्म्स एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसलिए यहाँ पे देखो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड मीन टर्म्स मैंने लिख दिया, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड मीन टर्म्स, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड मीन टर्म्स दोनों को प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। तो यहाँ क्या है, जीरो है, जीरो का मतलब क्या है ए बार डैश, तो यहाँ पे एब्सेंट है, नो वैल्यू। ये क्या है सी है, तो सी बार हो गया, डी 1 है तो डी हो गया। यहाँ पे देखो ए बार बी बार सी होगा, ये क्या होगा ए बार बी सी बार होगा, ये क्या होगा डैश दैट इज एब्सेंट है, तो ए एब्सेंट है, बी सी बार डी बार। इन दैट वे वी आर राइटिंग ऑल द वैल्यूज। यहाँ पे क्या होगा देखो ए एब्सेंट है, बी प्रेजेंट है, सी एब्सेंट है, डी प्रेजेंट है, तो ये बी क्या होगा बी बार होगा, बी बार ये डी है तो डी होगा, सो बी बार डी हो गया। तो इन दैट वे यू हैव टू फिल द प्राइम इम्प्लीकेंट। तो प्राइम इम्प्लीकेंट प्रीवियस जो कॉलम था उसी कॉलम से यहाँ पे आ गया। नाउ यू हैव टू गिव द क्रॉस मार्क, देखो 1 है 1 क्रॉस, 5 5, तो करेस्पॉन्डिंग मीन टर्म से तुमको क्रॉस देना पड़ता है। यहाँ पे क्या है 2 3, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 5, ठीक है। तो 4 तुम्हारा डोंट केयर है, ठीक है। यहाँ पे देखो M1 M2 M3 M5 M9 M12 M14 M15 all the mean terms we have covered except me don't care. So I am giving you one more information, when you are going to create PI chart, तो वहाँ पे तुम्हारा all the mean terms present होना चाहिए, but except don't care को हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे। देखो 1 2 3 5 9 12 14 15 ऑल आर एक्टिव मेंबर्स, दीज आर नॉट डोंट केयर। डोंट केयर को हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए 4 डोंट केयर है तो 4 के लिए नहीं क्रॉस होगा यहाँ पे,
5 है, 5 क्रॉस हो गया। 4, नेक्स्ट 4 भी डोंट केयर है, तो 12 है, 12 को मैंने क्रॉस दे दिया। 8, 9, ठीक है, 8 भी डोंट केयर है, 9 होगा तो 9 क्रॉस हो गया। 8, 12, 8 डोंट केयर है, 12 को क्रॉस दाओ, 12 क्रॉस हो गया। ना 12, 14, 12 को क्रॉस दाओ, या ठीक है, एंड 14 भी क्रॉस हो गया। 12 क्रॉस है, 14 क्रॉस है। यहाँ पे देखो 11, 15 है, ठीक है, 11 देखो यहाँ पे एब्सेंट है, दैट इज डोंट केयर। सो 15 क्रॉस हो गया, 15 क्रॉस हो गया। 1, 3, 9, 11, 1, 3, 9, ओके 11 तो डोंट केयर है, इसलिए क्रॉस नहीं हुआ। तो यहाँ देख देख के जो जो मीन टर्म्स है दैट कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में क्रॉस देना पड़ता है, ये मेक इट क्रॉस, दैट इज द वे। ठीक है, प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल, ठीक है, पीआई चार्ट, पीआई चार्ट, इधर प्राइम इम्प्लीकेंट लिखना पड़ता है, इधर ऑल द मीन टर्म्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, मीन टर्म्स का जो कॉलम है वो कॉरेस्पॉन्डिंग मीन टर्म्स में तुमको क्रॉस देना पड़ता है। यहाँ पे देखो 1, 5 है, इसलिए 1 में M1 में क्रॉस हो गया, 5 में क्रॉस होगा, करेक्ट। तो बोलो 12, 12, 12, 14 है, तो कहाँ कहाँ क्रॉस होगा? 12 में क्रॉस होगा और 14 में क्रॉस होगा, 14 में क्रॉस होगा। In that way you have to fill up the corresponding by cross all the mean terms, जो जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स है मीन टर्म्स में, प्राइम इम्प्लीमेंट में जो जो मीन टर्म्स है उसी जगह में कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में तुमको क्रॉस देना पड़ेगा। तो क्रॉस होने के बाद तुमको ये दिखना होगा कि वहीं कहाँ कहाँ कौन कौन कॉलम में सिंगल क्रॉस है। क्रॉस देने के बाद you have to find out the column where single cross है। बोलो कहाँ सिंगल क्रॉस है? देखो 2 में है सिंगल क्रॉस, 11, 15 में, और 11 तो नहीं है इधर 15 में सर, ना। 15 में बाबू देखो डबल क्रॉस है, और अब किसी में नहीं है सर। हाँ, और किसी में भी नहीं है, इसलिए रेड कलर दे दिया। ये जो होगा ये तुम्हारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, ये स्टार दे दिया, इसलिए जो जो इधर होता तो उसी से भी स्टार फोड़ता था, लेकिन और तो नहीं है, इसलिए ये क्रॉस जो है ये स्टार हो गया। तो ये 2, 3 ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा ये जो है ए बार बी बार सी, ये तुमको लिखना ही होगा, ये टर्म 1 होगा ए बार बी बार सी, ठीक है। ये तुमको y इक्वल टू जो रिजल्टेंट होगा उसी जगह में तुम ये टर्म इंक्लूड होगा ही होगा, जो जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो तो 1 प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मिल गया, इसके बाद क्या स्टेप है? इसके बाद जो स्टेप है ये 2, 3 है, ये 2 का टिक मारो, 3 को टिक मारो, ठीक है, 2, 3 हो गया। नाउ देखो ए बार बी बार सी मैंने ले लिया बाबू, ए बार बी बार सी वाई, क्योंकि ये प्राइम इम्प्लीकेंट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। नाउ तुमको 1 चीज करना है, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? और तो तुम्हारा सिंगल क्रॉस नहीं है, सिंगल क्रॉस होता तो वो भी ले लेना चाहिए, तो मेरे पास और सिंगल क्रॉस नहीं है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ता है। ये तुम क्या करोगे? ये पूरा का पूरा रो, ये जो स्टार मार्क पड़ गया ये पूरा रो, और ये 2 कॉलम M2 का कॉलम और M3 कॉलम रिमूव कर दो, हटा दो, हटा दो, ध्यान से सुनिए। ये जो रो है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का रो एंड करेस्पॉन्डिंग मीन टर्म्स का M2 M3, क्योंकि M2 M3 देखो 2 3 है, ये भी इंक्लूडेड है, ये कॉलम, ये 2 कॉलम M2 कॉलम M3 कॉलम, और ये 2 ये जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ये रो एंड 2 कॉलम ओमिट कर दो। देखो सो मॉडिफाइड प्राइम इम्प्लीकेंट चार्ट, मॉडिफाइड प्राइम इम्प्लीकेंट चार्ट देखो, ये 2 3 नहीं है और वो वाला नहीं है, कौन वाला? 2 3 का वाला, 2 3 ए बार बी बार सी वाला, देखो ए बार बी बार सी वाला नहीं है। Now you have to check whether there is any single cross or not. Now same way you have to find out whether any column single cross is there or not. नहीं, सिंगल क्रॉस नहीं है, सिंगल क्रॉस होता तो सेम वे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होता और वो तुमको फाइनल एक्सप्रेशन में ले लेना चाहिए था,
उसके बाद वो रो एंड उसको जो मीन टर्म्स होता वो कॉलम भी बाद पड़ता। देन उसके बाद थर्ड पीआई चार्ट में तुमको चले जाना रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पे क्या है, किसी को भी सिंगल क्रॉस नहीं है। ओके, इसलिए तुमको कैसे तुमको आगे जाना है ये तुमको ध्यान से सुनना है। तो देखो, तुमको ये जो है फाइनल एक्सप्रेशन में ये जो मीन टर्म्स है M1 M2 M3 M5 से M15 तक सबको ठीक आना चाहिए, सबको इंक्लूड करना है फाइनल एक्सप्रेशन में। तो 1 2 3 5 9 12 14 15 में अंदर में 2 3 इंक्लूड हो गया। नाउ 1 5 9 12 14 15 ये बाकी है। तो इस ग्रुप में ये कॉलम वाइज तुमको दिखना है कौन कौन, हाँ कौन कौन